Good afternoon, everyone. Welcome to CSF headquarters. To begin with, we are holding this first press conference of the year. So wish you all a very happy new year. We're meeting for the first time in this year. So from my side and on behalf of the CISF, I wish you a very happy new year 2026. So to begin with, I'll just give you a brief introduction of why we are all here. And then I would request my IG Tech to give a detailed briefing on today's press conference. So as you are all aware that CISF conducted a cyclothon covering the entire coastal area last year. That was the first edition of a cyclothon covering almost 6,500 kilometers. And we traversed through the entire coastline, covered all the coastal states of the country from Gujarat to Bengal, eastern side from Bengal to Kanyakumari, and on the western front from Gujarat, Lakhpat Fort to Kanyakumari. So covering almost 6,500 kilometers. And in the process, we had covered almost all the villages which came along the way. So this year we are going to host another edition of Cyclothon, and we have particularly named this cyclothon as Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. So basically, the theme has been taken from the Government of India's commemoration of Vande Mataram song, 150 years of commemoration of Vande Mataram by Bankim Chand Chatterjee. And the idea is that we traverse through the coastline, we cover all the coastal villages, we raise awareness among the youth, try and associate them in the national objective, and also sensitize the coastal community on coastal security. As you are all aware, CSF has been given this mandate recently to cover the ports of the country as RSO, Recognized Security Organization, which implies that CSF is supposed to look after the port security, design the concept on port security, suggest them how to improve the port security infrastructure, and also assist them in improving the overall security ecosystem. So in that process, now it is the onus on CISF to reach out to all the communities along the coastline, because as you are all aware, the Government of India gives a lot of importance to coastal security, and it's a multi-stakeholder concept. There are other agencies also involved. We have other paramilitary forces also who are covering some part of the coast. Then we have the state police, coastal marine police, you're aware, and also the port authority in their own way. They have their own private security agencies. So it's a multi-stakeholder ecosystem, but CSF is definitely going to play a very significant role in times to come as per the Government of India's recent decision. And in that context, this coastal cyclothon has a very broad objective. So not taking much of your time and not taking the time of Sonia also, because she has to come and brief you about the overall thing. So once again, I welcome all of you, and we are basically following the directives of the Honorable Prime Minister in the recent DGP's conference, when he laid so much of emphasis on improving the coastal security ecosystem. And obviously, CISF will have a very significant role to play in it. So I request Sonia to brief you in detail about the whole program, the areas which we are going to cover, and the people with whom we are going to associate with, and our broad objectives of doing this cyclothon. Sonia, please. Good afternoon, everyone. On behalf of Director General CISF, I welcome all of you here, and also I extend my heartfelt thanks to you for joining this press interaction. I will first of all brief you about the CISF, and then I will brief you about the Coastal Cyclothon 2026. Central Industrial Security Force भारत की एक प्रीमियर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है
जो राष्ट्र के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लाइफलाइंस की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों में CISF ने अपने स्केल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जोग्राफिकल फुटप्रिंट्स में अप्रत्याशित विस्तार देखा है। आज CISF देश भर में 370 से अधिक वाइटल इंस्टॉलेशंस को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, मेट्रो सिस्टम्स, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, स्पेस और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, डैम्स, कोल माइंस और दिल्ली एवं अन्य बड़े शहरों में सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा भी CISF के दायित्व में है। CISF ने नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंस को मजबूत किया है और हाल ही में मिजोरम के लेंगपुई पोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। आज CISF की इकाइयाँ सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हैं, जो इसे ट्रू पैन इंडिया फोर्स बनाते हैं। लगभग 2.25 लाख कर्मियों की सैंक्शन स्ट्रेंथ के साथ CISF आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। Cyclothon 2025 clearly demonstrated the power of people's participation at scale. 25 दिनों के दौरान CISF साइक्लिस्ट ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर लगभग 6,500 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया। इस यात्रा के दौरान 25 लाख से अधिक नागरिकों से सीधा संपर्क हुआ और डिजिटल तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक आउटरीच पहुंची। इस मूवमेंट में हज़ारों वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। स्कूलों के बच्चे, मेडिकल स्टाफ और कम्युनिटी लीडर्स भी इसके साथ जुड़े। कई एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट्स और पब्लिक लीडर्स भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लोकल ट्रेडिशंस को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। The cyclothon established itself as a high-impact national outreach platform, जो तटीय समुदायों तक सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव और नागरिक जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण संदेश लेकर पहुंचा। इस मूवमेंट के दौरान मछुआरों और अन्य तटीय समुदायों को देश के तट प्रहरी के रूप में चिन्हित किया गया, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए आईज और ईयर्स का काम करते हैं। Cyclothon 2025 aligned with government's coastal security initiative, Operation Sajag, for strengthening community policing in coordination with coastal police stations. The overwhelming response to the first edition of CISF Coastal Cyclothon reinforced the central message that when the coastal communities are informed, engaged, and empowered, they become the strongest allies in safeguarding nation's maritime interests. सेकेंड एडिशन को 28 जनवरी से 22 फरवरी तक आयोजित करने जा रहे हैं हम, ताकि इस हिस्टोरिक मूवमेंट को और आगे बढ़ाया जा सके। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित DGP IGPs कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे इनिशिएटिव्स की सराहना की थी जो पीपल्स पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट पर आधारित होते हैं। The Honorable Prime Minister highlighted that such community engagements play a vital role in enhancing public understanding of security imperatives and foster a strong sense of shared responsibility between the security forces and citizens. इस निर्देश से प्रेरित होकर इस वर्ष CISF साइक्लोथॉन को और ज़्यादा बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज करने में प्रयासरत है, जिससे तटीय क्षेत्रों में पब्लिक आउटरीच और पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस वर्ष के साइक्लोथॉन को वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का नाम दिया गया है, जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रीय एकता, गौरव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस साइक्लोथॉन को 28 जनवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नित्यानंद राय द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। CISF साइक्लिस्ट्स की 2 टीमें पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल के बकखली और पश्चिमी तट पर गुजरात के लखपत फोर्ट से एक साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगी। ये दोनों टीमें
25 दिनों की अपनी यात्रा में लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, making it one of the most extensive cycling campaigns ever undertaken in the country. They will pass through 11 coastal states and union territories, engaging with coastal communities, youth, students, local stakeholders, and institutions, and their journey will culminate in a grand finale at Kochi on 22nd February. यात्रा के दौरान तटीय क्षेत्रों में लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कई पब्लिक इंटरैक्शन और अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कई महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। मुख्य तौर पर पहला, तटीय समुदायों और मछुआरों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें कोस्टल सिक्योरिटी के प्रति सजग करना और सुरक्षा से जुड़े खतरों जैसे कि हथियारों और विस्फोटक सामग्री की तस्करी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि के बारे में सचेत करना और सरकारी रेगुलेशंस जैसे कि वेसल रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग सिस्टम्स, मैरीटाइम बाउंड्री एंड 24/7 सर्च एंड रेस्क्यू हेल्पलाइन 1554 के बारे में अवगत कराना। दूसरा, राष्ट्र के प्रति गौरव और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करना तथा सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराना। तीसरा, भारत की उत्कृष्ट सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर को सेलिब्रेट करना और उसमें हमारे तटीय समुदायों और मछुआरों द्वारा किए गए अमूल्य योगदानों की सराहना करना। चौथा, कोस्टल कम्युनिटीज़ विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस में उपलब्ध एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी अवगत कराना। 150 साइक्लिस्ट्स की टीम में 50% महिला साइक्लिस्ट शामिल होंगी, जिसका एक मुख्य उद्देश्य बच्चियों को इंस्पायर करना होगा। सुरक्षित तट समृद्ध भारत के थीम पर आधारित वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 का उद्देश्य कोस्टल सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में रीइंफोर्स करना और इसका कम्युनिटी वेलबींग, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी तथा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ महत्वपूर्ण संबंध को सुदृढ़ करके विकसित भारत 2047 की विजन को साकार करना है। कोस्टल सिक्योरिटी सुरक्षित व्यापार, सस्टेनेबल फिशरीज, टूरिज्म और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और यह राष्ट्रीय प्रगति की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। यह माननीय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को वास्तविकता में बदलने का एक प्रयास है। इसी के तहत वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 के दौरान कुछ स्थानों पर मेगा इवेंट्स भी आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि हल्दिया, कोणार्क, वाइजैग, चेन्नई, मंगलुरु, गोवा और मुंबई। इन मेगा इवेंट्स में कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी संस्थाओं की मदद से कोस्टल सिक्योरिटी के संदेश को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा, साथ ही साथ वहाँ की स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी पहल के तहत CISF 52 कोस्टल विलेजेस को अडॉप्ट करेगी, जहां साइक्लोथॉन के बाद भी साल भर पार्टिसिपेटिव एक्टिविटीज़ और पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ONGC और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से CSR के तहत कल्याणकारी और बुनियादी ढांचों के विकास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।